तो हम लोग को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। और 30 तारीख 1 तारीख को भी बहुत सारे आशीष हम लोगों को मिला। हम लोग बेडरूम में सुन रहे थे, काफ़ी लोग गवाह दे रहे थे कि प्रभु का आशीष के लिए रो रहे थे, गवाह दे रहे थे कि हम लोग मिस किया। कोई कोई हमको बोल रहे थे कि पास्टर जी क्यों नहीं और 1-2 दिन आगे रखिए, और 2 दिन रखिए, 4 दिन का मीटिंग रखिए। हमें खुशी हुआ कि कम से कम हमारा भाई लोग मन में इच्छा है कि कुछ बच्चन को और भी खाने के लिए, बढ़ने के लिए। अगर आप लोग में किसी का कोई गवाह हो, 1-2 जन दे सकते हैं। 30 तारीख और 1 तारीख का जो आपको आशीष मिला है, 30 तारीख 1 তারিখ দিয়ে আশিস পেয়েছো আপনি, যদি তাহলে আপনি দিতে পারো। সবাইকে জয় যিশু। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। 30 তারিখ যখন প্রেয়ার হচ্ছিল তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে কফিন বক্স খুলে যাচ্ছে, কফিন বক্স থেকে মৃতদেহ উঠছে। তখন আমি বুঝতে পারছি না। তারপরে দেখছি স্বর্গের মধ্যে প্রভু ঘোড়া তার সমস্ত অনেক লোকদের নিয়ে মধ্য আকাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর অনেক মানুষ নিচ থেকে মানে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমি তখন ভীষণ কাঁদছি। আর সমস্ত যেটা বাক্যতে লেখা আছে যে সমস্ত হাঁটু পাতিত হবে আর সমস্ত মুখ স্বীকার করবে যে প্রভু যীশু ঈশ্বর, তার সমস্ত হাঁটু তার সামনে তখন পাতিত হচ্ছে। আর সে রাজার মতো সে মধ্য আকাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর সকল তার লোক উঠে যাচ্ছে, মৃতদেহ কবর থেকে উঠে যাচ্ছে। এই দর্শনের জন্য আমি প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। যে 2 দিন রাখা হয়েছে, আমি বাড়িতে প্রার্থনা করছিলাম যে প্রভু কিছু তো পাবো, প্রভু আমরা কিছু পাওয়ার জন্য যাব। তা আমরা সেদিনকে অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি। দাউদের মতো, দাউদ যেভাবে আরাধনা করতো সেইভাবে প্রভুর আগুনের উপস্থিতি পেয়েছি। আরেকটা কথা যখন আঙ্কেল বললেন যে এলিও এবং এলিশিও নিয়ে যে বাক্যটা বললেন যে এলিওর থেকে দ্বিগুণা আশিস এলিশিওর মধ্যে এসেছিল, আমি বাড়িতে আগে থেকেই প্রার্থনা করছিলাম যে প্রভু আপনার অভিষিক্ত দাস হলো এলিও আর আমরা হলো এলিশিও, তার হইতে সেই আশিসের সেই সহভাগিতা যেন আমরা হতে পারি। আমরা প্রত্যেকে সেদিন সেই আশিসের দুগ্না আশিসের সহভাগিতা হয়েছি। আর দাসের কাছে এই প্রার্থনা করি, মানে এই আবেদন জানাই, এই মিটিং যেন 4 দিন হয়। আমরা আরও ক্ষুদিত সেই প্রার্থনার জন্য, আমরা আরও চাই সেই আগুনের সেই পবিত্র আত্মার বাক্য বচন আমরা আরও চাই। তাই আমি প্রভুকে অনেক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। हम लोग को बहुत आशीष मिला, परमेश्वर का धन्यवाद। दर्शन देख रही हूँ कि मेरे मुंह से धुआं का जैसा कुछ निकल रहा है और वहाँ से धुआं का जैसा मेरे अंदर में आ रहा है, ऐसा प्रकाश का जैसा पूरा लग रहा है कि वो जैसे धुआं आके मेरा मुंह में ठेल रहा है जैसा। और ऐसा दर्शन देखे और परमेश्वर ने मुझे छुआ और हम लोग बहुत परमेश्वर का आशीष पाए। प्रभु को कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। आज महत्वपूर्ण, बहुत ही आशीषित आज है। हम लोग कितने लोग सचमुच यीशु को हम लोग प्यार करते हैं? जो सचमुच यीशु को प्यार करता है वो हाथ उठाएंगे। सब लोग प्यार करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। क्या सचमुच आप लोग प्यार करते हैं प्रभु यीशु को? ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। आप जो बोले ठीक है, मगर आज प्रभु जानता है आप सबकी स्थिति को। আপনি যেটা বলেছেন ঠিক আছে, কিন্তু প্রভু আপনাদের প্রত্যেক ভাই বোনে হৃদয়টা অন্তরে কি আছে, बच्चे लोग अभी प्रभु यीशु जानता है। हम कहते बहुत कुछ मगर करते नहीं। আমি বলি অনেক কিছু
কিন্তু সেইভাবে আমরা করি না। সেইভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের জীবনের মধ্যে কোনোদিন অভাব থাকবে না। অভাব, কোনো বিষয়ে অভাব থাকবে ना। हम कहते हैं मगर करते दूसरे कुछ। अगर सचमुच आज यीशु को आप प्यार करते प्रिय भाई बहनों, तो आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, नेवर, किसी बात की चिंता वो करता है जो अपने जीवनदाता सृष्टिकर्ता को, उसके उद्देश्य को नहीं जानता है, उसके प्लान को नहीं जानता है, उसके उद्देश्य को नहीं समझता है। जरा चिंतित होए, जरा ईश्वर के प्रभु यीशु के जाने ना काज থেকে তার উদ্দেশ্য, তার প্ল্যান, তার করুণা কত বড় মান আছে। আজকে মানুষ রাস্তা চললে চিন্তা নিয়ে চলছে। হ্যালো, কি है कि ना? जोर कर बोलो, प्रभु जाने तो इंसान चलते हैं बगैर चिंता करे कि चलते, है कि नहीं? हेलो, हाँ है। चिंता कौन करता है? जो प्रभु को ठीक तरीके से नहीं पहचानता है, जो बाइबल को ठीक तरीके से नहीं पढ़ता, नहीं समझ सकता है, जो रोज बाइबल को नहीं खोलता है, जो बाइबल के बातों को हल्का रूप से ले लेता है। जरा जरा रोज যদি বাইবেল খুলে তারা বুঝতে পারবে যিশুকে। আমরা বাইবেল খুলি কিন্তু কিভাবে খুলি আর কেমন খোলা দরকার, বাইবেলের মধ্যে কি আছে, কার জন্য আছে, কিসের জন্য আছে, সেটা অনেক সময় আমরা বুঝি না, বুঝবার চেষ্টাও করি না। আমি সেই ঈশ্বর সেবা করি যিনি জীবন্ত আছেন, যার কাছে সব কিছু আছে, কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা বুঝতে পাই না। আমরা সাংসারিক কথা নিয়ে আমরা বেশি ভাবতে থাকি, চলতে থাকি, যিশু যিশু বলি, কিন্তু যিশু থেকে আমাদের অন্তর মধ্যে তার প্ল্যান, উদ্দেশ্য যে বাইবেলের মধ্যে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছে সেটাকে আমরা বুঝতে পারি না। हम प्रभु के साथ रहते, आप प्रार्थना अच्छा करते, परमेश्वर आपको आशीष करे, आप बाइबल पढ़ते, प्रभु आपको आशीषित करे, मगर हम किसकी सेवा करते वो हमें जानना जरूरी है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है, जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ मुझे आपको दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें आपको दिया है। इसी प्रभु हमें आपको बहुत ही प्यार करता, हम सबों को। आज हम संसार की चिंताओं को लेकर चलते हैं। हर इंसान के अंदर विभिन्न प्रकार की चिंता है, पैसे की, धन संपत्ति की, घर बाड़ी, घोड़ा गाड़ी, किसी को चिंता शरीर के लिए, कोई शरीर में कष्ट लेके चल रहे हैं, कोई बाल बच्चे के लिए चिंता करते रहते हैं। मगर हमें चिंता क्यों करते हम? क्या हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो मुझे नहीं जानता? जो परमेश्वर की हम सेवा करते क्या वो मुझे क्या नहीं जानता?
प्रिय भाई, बीते रात परमेश्वर से बातें कर रहा था। मुझे एक वचन आया मेरे पास, जब मैंने प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया। मैं बोला प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको। रात्रि से पूछे प्रार्थना को जो प्रभु बाक को दिलो, प्रभु तुम्हारे छिले में या काल के आजबे तारा किसी जन्ने केनो तादेर की दरकार आछे। हमरा तो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु से, प्रभु तू जब पृथ्वी में था, एक गांव से दूसरे गांव जब जा रहा था, तेरे साथ काफी लोग थे और तूने कहा कि इन लोगों को कुछ खाना खिला। अपने चेलों से कहा तूने, क्योंकि सुबह से हमारे साथ है, ये भूखा है, हो सकता रास्ते में चलते चलते गिर ना जाए। चेले लोग को बोला तुम लोग इसको खाना खिलाओ। चेले बोले प्रभु इतने जंगलों में इस जगह में कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, और इतने लोगों को हम लोग कैसे करे खाना खिलाए। ये सुनने के बाद परमेश्वर ने जो उस समय 2000 वर्ष आगे किया चेलों से, प्रभु ने कहा तुम लोग खिलाओ। अगर आपको प्रभु कहे आप क्या करेंगी? क्या करेंगे? प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? दूसरी बात बोला तुम्हारे पास क्या है? पहले बोला तुम खिलाओ, इन लोग थक जाएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, भूखे हैं, भूखे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोग खिलाओ। प्रभु कहाँ से खिलाऊंगा? दूसरी बात परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास क्या? आज आपके पास क्या है? प्रभु पूछ रहा है आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? तब कहा प्रभु एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब सेवक लोग भी केयरफुल सीखना। वचन पर कान लगाओ। वचन आपको मालूम है, वचन आपका धार बकर गुरु बात नहीं मालूम है। बी केयरफुल। अपने दिमाग को यहाँ मत रखना, बाइबल को सुनो पहले। तो बोला ठीक है लाओ मेरे पास। चेलों लोग ने प्रभु के हाथ में दे दिया कितना रोटी? 5 रोटी और 2 मछली। कितने रोटी? 12 वाले 5 रोटी, मछली 2। ओके। प्रभु ने धन्यवाद देकर फिर चेले को दे दिया। क्या क्या? फिर चेले को हाथ में दे दिया। अब चिंता कीजिए, 5 रोटी 2 मछली चेले ने दिया, प्रभु ने पूछकर फून दे दिया टोकरी में आशीष करके। उन लोग को कह दो बैठने के लिए, उन लोग बैठ गए, जाके बांट दो। हम मसीह लोगों के अंदर में बहुत जरूरी होना, सेवक लोग के भी अंदर में। प्रभु मैं सेवा करता, मेरे चर्च के लोगों को मैं क्या भोजन दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इस बातों को लेकर सोच रहे थे, प्रभु से बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर, मुझे समझ सकते थे प्रभु। बाइबल के गहराई दे प्रभु। लोग मुझे नहीं देखने आएंगे, लोग तेरी बातों को सुनने आएंगे। जब प्रभु ने मुझे दूसरी बात बताया, उसे 5 रोटी 2 मछली को 12 टोकरी बच गया। 5000 से बेसी लोगों को खिलाकर तृप्त कर दिया। प्रभु तुमरे ही खावा है देखे। प्रभु हमारे तो बड़ो जंगल में तो लोग खावार कोत्ती के आज में शिशुरा प्रभु के बोलছে बोले रहा तो रास्ता चुल्ला पर पड़े जाबे, तुमरा खिलाओ। प्रभु खुद खिलाओ, तो लोग खावार की करो बे।
তখন বললো তোমার কাছে কি আছে? শিশুদের কাজে কি জানি ছোট বাচ্চা কাজে ছিল। আমাদের মন যদি বাচ্চা মতন হয়, যিশু আমাদেরকে ভালোবাসবে। 5টা রুটি 2টো মাছ আছে প্রভু, নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আবার ছেলেকে রিটার্ন করে দিল, যাও তাদেরকে খাওয়াও। আজকে আমাকে আপনাকে প্রভু যিশু বেছে নিয়েছে মানুষকে আত্মিক খাওয়াবার জন্যে। যিশু কাজে সমর্পিত চাইতে হবে, যিশু काज चाहते हो। आज हम सेवक करते परमेश्वर से कहना प्रभु तूने 5 रोटी 2 मछली में इतने लोग खिलाया, मगर मुझे एक आत्मिक भंडारी आत्मिक सेवक बना कि लोगों को जो भी कोई आए जैसे भी उसको प्यार से आत्मिक भोजन देकर उसको तृप्त कर सको। संसार में लोग बहुत भूखे हैं आज, बहुत से मसीह लोग आज भूखे हैं, बहुत से मसीह लोगों को जरूरत है, भोजन की जरूरत है, आत्मिक भोजन की जरूरत है। मगर आज मसीह लोग विभिन्न प्रकार के हम चर्च में आते, मगर हमारी जिंदगी खालीपन रहता है, चिंता लेके हम चलते। कारण क्या है? আমরা চার্চে আসি, তাও সত্ত্বেও আমাদের জন্য খালি বিভিন্ন প্রকার আমরা চিন্তা নিয়ে চলি কেন? क्या कारण है? जब रात परमेश्वर ने मुझे बातें बता रहा था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22-23, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22-23, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 22-23। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। কাঁটা ঝোপে যে বীজ পড়েছিল তা এমন লোকেদের বিষয় বলে যারা এই শিক্ষা শোনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনা ও ধনসম্পত্তির মায়া সেই শিক্ষাকে চেপে রাখে। আবার পুরো আপনার পিছিয়ে পড়বেন। কাঁটা ঝোপে যে বীজ পড়েছিল তা এমন লোকেদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শোনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনায় ও ধনসম্পত্তির মায়ায় সেই শিক্ষাকে চেপে রাখে। ধনে মায়া করে মানুষ যিশুকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আজকে আমরা সংসারিক প্রভু বাক্য শুনি, কিন্তু সংসারের চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে, ধনের চিন্তা, লোভ, যেটাকে আমাকে যিশু কাছ দিয়ে দূর করে দেয়। আর আমরা বলি প্রভু প্রভু তুমি কোথায় আছো গো প্রভু, আমি প্রার্থনা করছি প্রভু, আমি আজকে না খেয়ে রয়েছি, না পড়ে যাচ্ছি প্রভু, তুমি এসো চার্চে শুনো, বাক্য শোনো, পরেও তোমরা কি করো? সংসারের চিন্তা নিয়ে বাক্যকে শুনে থাকো। সংসার চিন্তা নিয়ে যদি বাক্য শুনবে তো কি বুঝবে? কি হয়, আমি যদি অনেক চিন্তা করে থাকি, যখন রাস্তা চলি, আমার সামনে দিয়ে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বা চার্চের মেম্বার আসছে, আমি তাকে দেখতে পাই না, সে আওয়াজ দেয় আমি শুনতে পাই না, তখন কি বলে, কিরে তো অহংকার হয়ে গেছে ওর, পাশ দিয়ে চলে গেল, আমাকে দেখলো না, কিন্তু আমার ভুলটা আমি বলছি, কী রে কি আমার কালকে দেখলে তুমি কথা বললে, আমার পাশ দিয়ে চলে গেলে, বাবা আমি তো দেখিনি তোমাকে, কোথায় ছিলে, আমি তোমাকে আওয়াজ দিলাম, আমি শুনতে পাইনি। এই যে সুন্দর বাক্য শুনে আনন্দ পায়, সংসারের চিন্তা, ধনে মায়া, ধন সম্পত্তি মায়া,
বড় হব সব ঈশ্বর কথাকে চাপিয়ে দেয়। এই জন্য মানুষ চলতে চলতে আমার মাথা ঘুরছে গো, ব্যথা হচ্ছে গো, কি হবে কি না হবে। তাই হয় কি না প্রিয় ভাই বোন? তাহলে আমি যিশুকে কি করে চিনলাম? কিভাবে আমি জানি যিশুকে? যিশু কি বলছে আমাকে? বাক্য শুনো, ব্রিজে ফেলেছে বিষটা। ঈশ্বর দাস বাক্য দিচ্ছি আপনাকে, আপনি শুনছেন, কিন্তু এইখানে চার্চে বসে আছেন, আপনার চিন্তা নিয়ে বসে আছেন, বাক্যকে শুনছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না। কারণ ধন সম্পত্তির চিন্তা, সাংসারিক চিন্তা আপনার জীবনকে যিশু কাছ দিয়ে দূরে করে দিচ্ছে। আমরা শুধু যিশু যিশুই বলে থাকি, কিন্তু যিশুর অন্তরে যে ব্যথা তাকে আমরা বুঝতে পারি না। हिंदी में जो झाड़ियों के बीच में बोया गया, जो झाड़ियों के बीच में एक जिस तरह बीज बोने वाला बो रहा था, बोते बोते कैसे सूखी भूमि में गिरा, फिर पत्थर भूमि में, कोई झाड़ियों में गिरा। यह वह है जो वचन को सुनता है। जो वचन को आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम सच्चे वचन को सुनते हैं। आज भी भाई बहन, बहुत सारे भाई बहनों बैठे यहाँ पर ही, बाहर भी बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए। बहुत से बाहर में मैं भी कुछ है बहन लोग, वहाँ एक भाई भी है बैठे हुए जो काफी चिंता में है, कर्ज के बोझ की चिंता है। और एक एक समय तुम्हारे मन में ऐसी बात उत्पन्न होता है, कितना कर्ज मैं कैसे मिटाऊंगा, हम सुसाइड कर लेंगे। प्रिय भाई, बी केयरफुल। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर हमारा गरीब नहीं है, हमारा परमेश्वर धनी है, हमें जानता है और हमारे कमी को भी पूरा करता है। उस परमेश्वर के हम सेवा करते हैं। अगर आज प्रिय भाइयों, अगर आपकी ऐसी स्थिति है, एक बार कही प्रभु मैं परेशान हो गया कर्ज मुसीबत से, मैं सुसाइड करने वाला था, मगर अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी तेरे हाथों में दूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ भी बहुत से भाई बहनों लोग हैं, उस कोने में भाई है, बीच में 2 बहन हैं, उधर में बहन लोग है, भाई लोग भी है, ये कोने में भी है। आज क्या आप चिंता लेके चल रहे प्रिय बहन? क्या चिंता लेके चल रहे आप? नहीं तो क्या चिंता तुम करती हो? तुम्हारे चेहरे से मालूम देता काफी परेशानी, काफी चिंता में रहती हो तुम। अपनी चिंता प्रभु को दो। नहीं तो जी ईश्वर तुमको प्यार करता है, तुम चर्च में आती प्रभु के वचन सुनो। जो मेरी वचनों को सुनता है मगर इस संसार की चिंता लेके बैठा रहता है, भवन में आता है मगर संसार की चिंता को लेके बैठे रहता है, संसार की चिंता, धन की धोखा, लोभ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बिनो यीशु को करीब से पहचानो। यीशु प्रभु हमारा गरीब नहीं है, बहुत धनी परमेश्वर है। वो जानता है, पहचानता है, हर कमी को पूरा करता है परमेश्वर हमारा आपका। हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बीते रात में मुझे बताया परमेश्वर, देख मंदिर में बहुत से लोग हैं इस स्थिति में चल रहे हैं। आज प्रिय भाई बहनों,
यीशु आप सबों को प्यार करता है। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यीशु प्रभु आज आपकी जिंदगी से कर्ज को मुक्त करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह को आपको जानना करीब से हम बोलते प्रभु को हम जानते, मगर हम चिंता लेके चलते। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं पृथ्वी पर जिसकी चिंता नहीं है। आप लोग को जो चिंता उससे बेसी हमारी चिंता है, मगर मैं चिंता को साथ में नहीं रखता हूं, मैं यीशु को साथ रखता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं सुबह उठ के कहता हूं प्रभु मैं अपने सारे चिंता, कर्जा पानी, पैसे कौड़ी, मंडली की चिंता, सेवा का चिंता, दिन भर की चिंता, सब मैं तेरे चरणों में रख देता हूं। मैं फ्री हो जाता हूं। हालेलुया। प्रभु का दिया करो तो तुम्हें भी, क्योंकि हम देते नहीं, लेना सीखा है, देना नहीं सीखा है। लेना सीखा मत सीखो, देना सीखो आप। जब इस बातों को आप देखेंगे प्रिय भाई बहन, आज आपके लिए परमेश्वर बहुत आशीषित करेगा। आज आप सबको, आप दूसरा टाइम कोई आपको नहीं बोले कि आप यीशु को जानते। हम जानते मेरा यीशु मेरा चिंता ले लिया है, अब मैं चिंता में नहीं हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा यीशु मेरे गरीब से मुझे मुक्ति कर दिया है। मैं जानता हूं यीशु मसीह हमारे सारे कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब महत्वपूर्ण बातें, दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31-32, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31-32। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, आप लोग पीछे पीछे बोलिए तो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। বাংলায় তোমরা এই বলে চিন্তা করো না, আমরা কি খাবো বা কি পান করব বা কি পরব। বিধর্মীরাই এসব নিয়ে চিন্তা করে। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তো জানেন এসব জিনিসের তোমাদের প্রয়োজন আছে। आज यीशु प्रभु आपको सारे चिंता से आपको आज़ादी करेगा। प्रिय भाई बहनों, हर इंसान को कुछ कमी की जरूरत होती है। मेरी भी कमी की जरूरत होती है। मैं बता रहे थे ना, 15,000 का बिल आ गया, पैसे नहीं था, भाई टोपो शामिल है। मैं झूठ नहीं बोलता, वॉल्टर पर हूँ। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, बोला हाँ हम दे देंगे। मैं बोला आपको बात बंधूंगा। मैं बिल भर दिया, ग्रीन बिल था। तुम चिंता करके आप सोचिए, चिड़िया पंछी कोई नौकरी करता है, कोई काम धंधा करता है क्या? चिड़िया पंछी को परमेश्वर देता खाना, भोजन? बस हर साल उसके पुराने कपड़ा निकल जाता, नई पंख आ जाता उसका। प्रिय भाई बहनों, एक चुटी की सच्ची घटना। चिटी, इसी बरसात का समय था, हम घर में अपना, उस समय हमारे फैमिली थी, मैं ऐसे लेटे हुए थे, कमलानी आज कहीं नहीं, थोड़ा रेस्ट लेंगे। मंडे के दिन थोड़ा सा हम फ्रेश होते, रेस्ट लेते। तो अचानक मैंने इसे घूम के देखा, मेरे दीवार पर चींटी लाइन से ऊपर से उतर रहा है, चींटी नीचे से उठ रहा है, चींटी नीचे से उठ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऐसे चले जा रहा है, ऐसे करके बगल से निकल जा रहा। मैं उठ कर बैठ कर फिर मजे से मैं देख रहा था। मैं बोला प्रभु तू तो मुझे जी दिखाया, मगर मैं समझ इसको समझा तो मुझे क्या बातें हैं। देख चींटियों के अंदर कितना प्यार है, पहली बात। और एक चींटी दूसरे चींटी को किस तरीके से मदद कर रहा है। तीसरी बात, एक चींटी दूसरे चींटी को बता रहा है कि उस जगह पर भोजन उसको जाकर लेके आ जा। उतर रहा है,
देखते दूसरा भोजन लिया, चल रहा, जो उसको बोला वो फिर ऊपर गया, ऊपर से आके फिर उसको ठोका, चला रहा है। फिर भाई बहनों, चिट्ठी कहीं कोई काम धंधा नहीं करते, मगर परमेश्वर उसको बरसात के समय भी अनाज पाती देता है, अनाज पाती देता है। आज हम अपने आप को छोटा क्यों बनाते हैं? क्या चींटी साहब छोटे हैं? क्या चिड़िया पंखी साहब छोटा है जो आप चिंता करते रहते हैं? वचन को तो सुनते, मगर संसार की चिंता, धन का लोभ उसके जिंदगी को बर्बाद करता है। यही बातें परमेश्वर कह रहा है, इनसे पढ़ देंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसी पद को आप पढ़िए, हमारा स्वर्ग पिता। आप जोर से मुंह खोलिए, सब मुंह खोलिए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, ऐसे नहीं है करके नहीं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता यस, जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा जानता है भविष्य को, जो हमारी कमियों को जानता है, हमारी चिंताओं को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है। वो जिंदा है, वो हर बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हम किस तरीके से अपने लाइफ में हम लोग प्रिय भाई परमेश्वर को हम कैसे करके प्यार करते हैं। मेरी भी कभी कभी बहुत समय आ जाती है, हमारे अभाव, कोई समस्या, कोई गरीबी, कोई पैसे की जरूरत हो जाती है। मैं किसी के पास नहीं बैठता हूं, नहीं बोलता कि मुझे चाहिए। मैं, हमारा पिता यीशु जानता मुझे कि तुम्हें क्या जरूरत है। मैं बोलता प्रभु यहो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर भी 4:19 से कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमी को पूरा करेगा। मैं घुटने में बैठ के प्रभु से बोलता मैं धन्यवाद देता प्रभु, तू हमारी प्रार्थना को सुनना, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, तू जानता मेरे कमी को। आज हम कमी को लेकर चलते, चिंता को लेकर चल रहे, मुसीबतों को लेकर चल रहे, परेशानियों को लेकर चल रहे, गरीबी में चल रहे, बीमारी लेके चल रहे, चर्च आते, मगर परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सुनने के बावजूद हम यहाँ बैठे रहते, हमारा मन बाहर रहता है, हमारा मन में काफी चिंता रहता है, हम चिंता लेके बैठे रहते, इसलिए हमारा परमेश्वर को हम चिन्ह नहीं पाते, पहचान नहीं पाते जो परमेश्वर हमारे आपके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हर कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या बहुत परेशानी में आप लोग हैं? क्या चिंता लेके आप चलते हैं? क्या चिंता है आपकी? आपके यीशु को प्यार करते हैं? यीशु का वचन क्या कह रहा है? जो झाड़ियों में गिरा, जो वचन को सुनते हैं, अगर संसार की चिंता, धन का लोभ जिंदगी को बर्बाद कर देता है, मगर मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस संसार के लोगों का समान मत बनो, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, परमेश्वर मेरा जानता है कि मुझे आपको क्या जरूरत है। ये बात आपके जिंदगी में प्रिय भाई बहन मसीह लोगों को भी क्या बहुत जरूरी जानना है। ईश्वर प्रभु हमारे आपकी जिंदगी को बहुत कुछ आशीष करना चाह रहा है, बहुत सारे आशीष तो करना चाहता है परमेश्वर। हम बहुत समय देखते प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देते। मैं प्रभु पास जब बैठता हूं तो प्रभु को कहता हूं प्रभु तू तो हमारे सब कुछ जानता है बाबा, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं तुझे पहचान पाया, मैं तुझे पहचान पाया कि तू मेरा सब कुछ पूरा कर सकता है। आमीन। पिता खुशी होता कि मेरा बच्चा जान पाया मुझे। कैसे जान पाया? वचन के द्वारा।
इस वचन को जब पढ़ता हूं तो परमेश्वर आपको आज वो बातें सिखाना चाहता है जो परमेश्वर का गुरु गुरु बातें, जो प्रकाश की आत्मा है। हम बहुत समय अपने बाइबल को अपने साधारण तौर पर पढ़ते आप लोग, अच्छी बात है, मगर जस्ट लाइक रूटीन टी 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 करके खत्म करती है। महत्वपूर्ण बातें याद करना चाहिए। अपने वचन को आप लिखकर घर में जाकर पढ़कर उसके पे हाथ रखना, प्रभु मैं इसको समझना चाहता हूँ। आप कभी भी गरीबी नहीं रहेंगे, आमीन। आप भीख नहीं मांगेंगे, आप भूखा नहीं सोएंगे, आप फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, हालेलुया। और आप चिंता लेकर नहीं चलेंगे, चिंता लेकर नहीं चलेंगे। उस समय हम लोग को लाइफ में देखते प्रिय भाई बहनों, हम लोग अभी खाते हैं ना, अक्सर करके लोग हम लोग देखते घर में, शाम को डिनर हो गया, अब डिनर के बाद हम लोग क्या करते, बोलते अरे भाई अब सुबह का तो ब्रेकफास्ट नहीं है, बच्चे को स्कूल जाना है, उसका कुछ टिफिन नहीं है, खा रहे और चिंता कर रहे है ना, खाते खाते हेलो करते कि नहीं, ए दीदी लोग थोड़ा प्यार तो करो हमको, हाँ या नहीं, नहीं तो बोलिए नहीं, करते हैं। क्या बाइबल कभी कोई झूठ बोलता है? बाइबल आज हमें आपको बताना चाहता है कि लोग, इंसान चिंता कर कर के रोटी खाते हैं। আমরা প্রভু কাছে আসে কিন্তু প্রভু বাক্যটা আমরা বুঝতে পাই না, তার উপর নির্ভর থাকতে পাই না। তুমি কেমন করে শুনছো, কিভাবে শুনছো? আমার ঈশ্বর বলছে কি তুমি তাদের মতন হইও না যাদের আশা নেই, কিন্তু আমি তো তোমার স্বর্গীয় পিতা, আমি জানি তোমার কি কি প্রয়োজন আছে। যখন আমার বাবা জানে আমার প্রয়োজন আছে, তো আমি প্রয়োজন কেন রাখবো কাজে? আমি যিশু বাবাকে রাখবো, কাউকে রাখবো না। যিশু প্রভু চায়, যিশু প্রভু আমাদের জীবনের মধ্যে চায় আজকে আমরা চিন্তা করে করে ভাত রুটি খাই। महत्वपूर्ण बातें बाइबल आज आपके जिंदगी को बदलना चाह रहा है, आपके विश्वास को बहुत ऊंचा उठाना चाह रहा है परमेश्वर। आज पहले वचन हम लोगों ने क्या पढ़ा? কোন বিষয় ভাবিত হইও না। কোনটা পড়েছিলাম আমরা? কি বাক্যটা? কি বাক্য? क्या पढ़ा था वचन? हाय रे प्रभु, कहाँ मुझको खड़ा कर दिया बाबा, इन लोग तो समझ ही नहीं रहे तेरे वचन को, नहीं सुनेंगे ना, आप उसको अंदर से नहीं ग्रहण करेंगे ना, आप आशीष नहीं पाएंगे, चिंता में रहेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस पर वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। फल नहीं लाता। दूसरे वचन क्या था? हाँ? मत्ती 6:31-32 तुम्हारा उनकी ना मानो जिसको नहीं मालूम क्या है, मगर हमारा परमेश्वर हमारा मांगने से पहले सब जानता क्या क्या जरूरत है। आप इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिए प्रिय भाई बहनों, दिमाग में रखिए आप। ये वचन आपको रास्ता चलते चलते आपको काम करेगा। मैं रास्ता चलता कुछ था, प्रभु तू तो कहा बड़े आंधी आने से भी तो पहाड़ को हटा सकता है, हट जाए यीशु के नाम से, हट जाता है। बहुत समय प्रिय भाई बहनों,
एक बार गाड़ी में आ रहे थे, लेटे हुए थे, अचानक मैंने आँख प्रभु खोल दिया, बोले देख सामने गाड़ी है, शिव कुमार ठोक देगा। मैंने देखा, स्टॉप। शिव कुमार डर गया, फट से गाड़ी बचा। आज ईश्वर प्रभु, ध्यान देना, पहला वचन क्या कह रहा है हम लोग से, दूसरा वचन क्या कह रहा है। पहला वचन कह रहे संसार की चिंता, धन का लोभ हमें डुबा देता है। दूसरी कहता मेरा परमेश्वर जानता है, ठीक है, मेरा परमेश्वर जानता है।